Hi, Hello, namaste. namaste. We are Radhika and Rohit, and we welcome you all to the very first episode of our podcast series, Tejas. An initiative by NSBT. Today, we have our first guest, a man who rather needs no introduction, a multifaceted personality, and a veteran social entrepreneur who has a lion's share in the development of Aurangabad city. A doctorate in business administration, a postgraduate in public administration, has an extensive experience of 40 years in the industry. It's a pleasure to have you for the inaugural podcast today. राधिका, पहली रिक्वेस्ट आपसे हमारी ये रहेगी कि आप सर नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल कुछ काका बोलो, अंकल बोलो, जो बोलना है बोलो। चलेगा। हाँ, सर नहीं कहेंगे आप। थैंक यू Perfect. चालेल एक something, let me tell you that you feel that I have done lot. I would never claim anything of that sort. And if at all there is anything that you feel that I have contributed, it is mainly because of people around me. It is not. I mean, there can't be anything which one could do alone. As far as my own journey is concerned, I come from a well-to-do, a zamindar kind of a family from Nagpur, ओके and well educated in a mission college. But from my school days itself, I was little different than others, a little active, and more interested in other activities than the core study as such. uh, and then I, maybe around college days, somewhere around 1970, when I was in second year in the college, I had an opportunity of participating in some program organized by the government of Maharashtra that time near Kolhapur, Varnanagar. And from there onwards, the journey started with a lot of social activities, particularly in the field of student movement. Okay. Those were the days when the students' unrest was very much talked of. ओके The Navanirman Andolan in Gujarat. Then there was in Assam, there was a student agitation going on. Yes. Even in this region, Marathwada, there were a lot of agitations and activities going on. And students' unrest was something which was very much an issue of concern for all the government, whether it was state or the center. Incidentally, at that time, I got two opportunities, something unique for my age at that time. The Indian independence had completed 25 years. I mean, the nation had completed 25 years of independence. And then the government decided to have some program, some celebrations, wherein the people born post-independence could be a part of the programs, the committee that you would decide. ओके And incidentally, for the state of Maharashtra, there was a committee appointed, and I, at the age of 21, in 1972, was a member of a committee which was set up by the then government for deciding the kind of celebrations for the 25 years of Indian independence. That's amazing. Got introduced to a lot of people, Amazing. could understand the government way of working. Then, and maybe that was the reason that I was also taken up on the then committee appointed by the Prime Minister. Rather, it was headed by the then Prime Minister. It was a National Advisory Committee on Student Unrest. And I again became a member of that committee as well. That gave me an opportunity of going to Delhi, understanding the issues, and the way government handles the problems. There are systems. And that's how I started getting introduced to the government way of working, the issues, the problems. You know, most of the activity that are being done here, either by the government or even by private institutions, are always problem-based, need-based. There are needs, so there are problems. So most of the things, I mean, there is hardly anything that is being done without a problem or without a need. True. राइट Most of the activities that are being, so I started understanding that. That gave me an opportunity of getting connected to the government.
And something very interesting that this post of Mavim that you referred to was offered to me. Okay. I was appointed as joint MD, then MD, and then chairman also of that corporation. But well, somehow I thought that maybe the canvas was not adequate for me because within government, with the government way of working and the limitations, I thought I should go to a bigger place or maybe I should have more independence. And somehow, again, an offer came. One of the top corporates in Maharashtra that time, based in Pune, they offered me an assignment which was mainly related to the human relations within the organization and also outside, obviously with the government also. I don't know how, but I had already fallen in love with this place, Aurangabad. Great. And instead of joining an industry in Pune, I came to Aurangabad. Wow. Huh. And then I worked with Garwares, those who were one of the pioneers in the field of industrial development in this region. And a lot of independence was given to me. And then something very interesting that even the people in Aurangabad, they welcomed us. I mean, it's not only me. There are a lot of people, those who have come here. There were days earlier when people coming from outside were not very much welcome and they somehow couldn't become a part of the overall process of development here. But well, I got that opportunity. Rather, the people, me and people, those who came around that time. So it was in 1981, that I had completed 30 years of my age and I finally came to Aurangabad and decided to settle here. Okay. This is a very, culturally, it is a very rich area. Not that Nagpur is not that Vidarbha is not that other areas are not that rich. But the richness in this area fascinates me. Again, you know, there are a lot of things that come from within. So how did it come? I don't know. And well, got settled here. People accepted. And with a lot of friends around, maybe I could do something. Wow. That's an amazing journey. Especially आज हम जब आपसे सुन रहे हैं that what was happening when India completed 25 years of independence and today India has completed 75 years. It's a long, long route. Our generation never existed there also. So it's fascinating to really hear about this. Also, one point which I picked up from our conversation now is that start early. You as a student, you started early. Yes. Hence, the kind of experience you gained when you were a student also helped you to form a very clear board to go ahead. It's a really nice thing. Just another thing that I have heard. So you never had to apply, and that's amazing. So ये बात सही है? Something in Marathi I'll tell you. Yeah, sure. काय होतं, आपल्याकडे एक मराठी म्हण आहे की बोलणाऱ्याची गाजरं पण विकली जातात. आणि मे बी मला लहानपणापासून आईवडिलांचे संस्कार असतील, शाळेचे संस्कार असतील, एक ऐसी चीज़ रही कि मैं बोलता रहा, लोग सुनते गए और कई लोगों को ऐसा लगा, यू नो, थोड़ी सी 4 चीज़ें बताने के बाद लोग शायद ये समझने लगे कि मुझे 40 चीज़ें मालूम है और उसके लिए एक बात तो खासियत रही है मेरी कि जहाँ पर भी मैंने कभी अर्जी करी हुई है वहाँ मुझे किसी ने लिया नहीं है और जहाँ मैंने अर्जी नहीं की वहाँ से बुलावा आया था. और मैं आई ऑलवेज वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई वाज ऑफर्ड अ पोजीशन and with due respect, people offered me positions and I worked for them. Wow. And I'm proud of that.
दैट्स ग्रेट. सो अर्जी से नहीं, मर्जी से. मर्जी से हुई है. Let me ask you, you were a Nagpurkar. Yes. You were born, brought up, educated there, as you said. What is that in Aurangabad that pulled you here? I really don't know. It is the people. It is the people of this region. What happened when the school college days, I was there. But thereafter, I was in Delhi, then I was in Mumbai, then I came to Aurangabad. And now I think, I feel that I'm from this region. I belong to Aurangabad. और वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक आधी इंस्टीट्यूशन को ये हम मांग रहे हो और नागपुर वालों को मिलती है तो मुझे आनंद नहीं, दुखी होता है. मैं ज्यादा जोरों में बोल नहीं सकता हूँ, आपसे कह सकता हूँ कि कभी कभार तो मुझे ना दुख होता है कि भाई ये यहाँ मिलनी चाहिए, क्यों चले गए वहां पर, यहाँ पर भी मिलनी चाहिए थी. तो ये होता है. वाह. सो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसे इनहेरेंट अट्रैक्शन होता है. और ये जो एरिया है, यहाँ का इतिहास हो, यहाँ से संस्कृति हो, और अभी तो यहाँ के लोग भी, ये सारे मेरे लिए ये ऐसे रहे हैं कि यहाँ पर मुझे अपनापन मिला और मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने लोगों में हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ अपने लोगों में था नहीं. हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये अपनापन जो महसूस किया हूँ, इसके वजह से मैं यही हूँ आज. And we are fortunate enough for that. Absolutely. Kaka, one more thing. Now, in addition to being a great tourist attraction for the entire world, it is also a preferred destination for many industries across the world. So, according to you, क्या है जो X factor है इस शहर में जो जिसकी वजह से आज तक का जो ये हिस्टोरिक जर्नी है फ्रॉम बीइंग खड़की टू संभाजी नगर ये तय हो गया, मे बी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? मैं बहुत पीछे ले जाऊंगा आपको. ये चीज़ों को समझने के लिए मैं बहुत पीछे ले जाऊंगा. ये बहुत ही रीसेंट बात है. यानी अगर इतिहास की बात करो तो बहुत ही रीसेंट बात है कि गए कुछ 30 सालों में, 30-35 सालों में यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला. बट सही बात तो यह है कि इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक होता है अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, और दूसरा होता है सोर्स फॉर लाइवलीहुड. उसके लिए एक है कि ज्ञान हो चाहिए. आई डोंट से इंफॉर्मेशन. You should have knowledge. You should have people, those who can effectively pass on that knowledge to the next generation. And there have to be people, those who use that knowledge, that experience, that expertise for the overall livelihood. लोग कहाँ बसते हैं? जहाँ उनके जिंदगी के लिए आवश्यक वो सारी चीजें उनको मिल जाए. अगर आप बहुत पीछे जाओ तो आप देखिए एलोरा अजंता की तरफ देखिएगा. आप इसे सिर्फ, आई एम एन आर्ट लवर, लेकिन जब मैं इनके तरफ देखता हूं तो मैं ये नजरिए से नहीं देखता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक कोई किसी कला का प्रदर्शन है. नहीं, आप उसको देखिएगा कि ये बनाते वक्त जो ज्ञान और विज्ञान का उपयोग हुआ है. Just see that Ellora definitely was carved by people from generations together. Maybe एक generation का तो काम नहीं है. And do you think now, both of you are engineers, you have studied in outside India. Can there be this kind of a creation without documentation? No. Never possible. We don't know. I mean, what kind of documentation that they had, unfortunately, is not available. But वो ज्ञान था. आप एलोरा की केव्स के तरफ जब आप जाओगे तो वहां जाने के बाद आप देखिएगा कि इट वॉज अ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी. वहां पर विशेषतः आप अगर बौद्ध केव्स आप देखोगे तो वहां पर चैत्य है और विहार है. जी. विहार रहने की जगह थी और चैत्य वर क्लासरूम्स.
Right. और वहां पर भगवान बुद्ध की को जो मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा अलग अलग है। वो एक मुद्रा ऐसी है और एक मुद्रा ऐसी है। तो ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा ये दोनों हैं। तो जहां पर विहार है वो मुद्रा आप देखिएगा, और जहां पर वो पढ़ाते थे वहां पर चैत्य जो है वो देखिए। So the residential university in this region, when the entire world may have not even thought of it, we had a residential university. एक पुराने हर धर्म में ये था कि जो भी धर्म गुरु जो होता है, he should not develop any attachment for any place as such. इसलिए उनको एक रात्रि से ज्यादा कहीं रहना ये वर्ज था, उन्हें नहीं रहना चाहिए। वो शास्त्रों में लिखा था कि एक रात से देन दे डेवलप अटैचमेंट, सो दे शुड शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। लेकिन बरसात के 4 महीने क्या करेंगे? तो उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का उपयोग कराने के लिए बच्चों को पढ़ाने का एक काम वो लोग किया करते थे। सो एलोरा इज अ प्लेस जिसमें आपने ये देखा होगा कि वहां पर कार्विंग्स तो है ही, वो तो मार्वल है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्वल वो है। लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन था, वहां लोगों को ज्ञान दिया गया, वहां से पढ़ाया गया। उसके बाद थोड़ा आप आगे आइएगा, आप पैटर्न कभी गए होंगे जी। कितने लोगों को यह मालूम है कि पैटर्न वॉज अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट? सिल्क रूट जब अफगानिस्तान से आता था, साउथ में जाता था, तो पैटर्न वॉज ऑन दैट सिल्क रूट। पैठनी वहां जो बनती है उसका ओरिजिन वो है, सिल्क उधर से आता है। दैट वाज द ओरिजिन। पैठन नगरी ये एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी। पेशवाओं के जमाने में पेशवाओं के साहूकार पैठन में रहा करते थे। हाँ, पेशवाओं को फंडिंग करने वाले उनकी जो बैंक थी, प्राइवेट बैंक बोलो उसको आप, वो पैठन में हुआ करती थी। बड़ा समृद्ध शहर था। आज आप हिंदू तिथि की बात करते हो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसकी बात करते हो, ये शालीवाहन शक का निर्माता शालीवाहन ये पैठन का था। ये प्रतिष्ठान नगरी इस शालीवाहन की, उनकी कैपिटल, इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ट्रेड भी वहां था, कल्चर भी वहां था, और काल गणना की जी बात हम करते हैं, जिसके लिए आज हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उन्होंने उसी वक्त किया था। अब थोड़ा और आगे आइए आप। आज हम हर रोज पढ़ते हैं, अब इंडस्ट्री में आप लोग काम करते हो, हम कभी किए हुए हैं। तो वी गो टू डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड उनको बुलाते हैं, उनसे ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, उनको कहते हैं हमारे देश में आके व्यापार करिए, हम भी आपके पास आएंगे। यू नो, जैन्स, नॉर्थ से जैनिज्म को मानने वाले जो लोग थे, उनसे राजा रामदेव राव यादव ने एक करार किया था। देयर इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन राजा रामदेव राव यादव एंड द जैन ट्रेडर्स। और क्या है बेसिकली, व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज इंडस्ट्री? इट्स अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू ऐड करने वाले, मूल्य वृद्धि करने वाले जो लोग हैं, उनको बुलाने का काम उस वक्त के एक शासक ने किया था, और उनको अपने किले में उनको जगह दी थी। आज भी पुरानी 5 जैन गुफाएं ये दौलताबाद के किले में, देवगिरी के किले में उपलब्ध है। और एक मजे की बात बताऊं आपको कि बहुत कम लोगों को मालूम है, आप गाने की जो बात करते हो ना, तो आप पहला गायक आप तानसेन को समझते हो, क्योंकि इतिहास ने हमको वही बताया है। लेकिन उनसे पहले रामदेवराव यादव जी की बेटी को गाना सिखाने वाला गोपाल नायक, वो दौलताबाद के किले में था, और उसके नाम से, दौलताबाद किले के नाम से, एक देवगिरी बिलावल नाम का राग है। और उसके बारे में लिखने वाले सज्जन बेचारे कहाँ पैदा हुए, अब कहाँ मालूम नहीं। वो एक प्रोफेसर रंगनाथ तिवारी, ये परली वैजनाथ के थे, उन्होंने उस पर एक छोटी सी नाटक लिखी थी। अच्छा, उसका नाम ही था देवगिरी बिलावल। अच्छा, ये वहां रहा करते थे। सो कल्चर, ट्रेड, कालगणना, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्री, ये कोई नई चीज नहीं थी हमारे लिए।
और एक मजे की बात, अभी आप एवरीथिंग दैट हैपन्स अराउंड गेट्स पोलिटिसाइज, और हम धर्म की बात करते हैं। राजा रामदेव राव यादव और जैनों के बीच में जो उस वक्त का ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड ट्रीटी है, उसमें कंडीशन है कि वो धर्मांतर नहीं करवाएंगे, अच्छा। और नहीं हुआ, ओके। नहीं हुआ। लेकिन शांति से उन्होंने व्यवहार किया। तो दक्षिण में, नॉर्थ से दक्षिण में जो जैन्स आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस वाज द ओनली थिंग दैट हैपेंड, बट वेल दिस कुड प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस दैट इट केम टुवर्ड्स द साउथ। तो ये सारी चीजों में हम समृद्ध पहले ही थे। बात दुर्भाग्य की ये थी कि हम लोग कुछ साल बीच में सारा भूल गए थे। हो सकता है कि मे बी ये यहाँ का जो सेंटर था सत्ता का, जैसे निज़ाम के ज़माने में हैदराबाद चला गया, एंड वी वर लिटिल फार अवे फ्रॉम देयर, एंड मे बी दिस वॉज नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, दिस वॉज निगलेक्टेड। लेकिन हमारे एरिया की डेवलपमेंट हम ही भूल गए हैं कि हम पहले कितने समृद्ध थे। शायद वो हो सके, लेकिन एक हमको मानना पड़ेगा कि इस एरिया के लोगों में वो ट्रेड इंडस्ट्री को बढ़ाने वाला जो एक जिन चाहिए, वो आपके खून में पहले से है। हाँ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। Wow. This is amazing and frankly goosebump time. No, I was feeling like we are sitting in a history lecture, and why didn't we learn it earlier? Absolutely. आप हम औरंगाबाद से ही है, पर इतनी सारी चीजें हमें भी कभी पता नहीं थी। मुझे तो लगता है कि ये एक चैप्टर बोल के इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ देयर ओन रीजन, दे विल बी प्राउड ऑफ इट, दे विल बी encouraged to do something more. But only on one condition, if he is there to tell all of this. Because I have lot of stories. The question is whether you have time. He is not a chapter, he is a university to come. नहीं, ऐसे मत कहो। देर आर, देखो ऐसे है कि ऐसी इंफॉर्मेशन कई लोगों के पास है। सवाल ऐसे होता है कि हमको टाइम चाहिए उनके पास जाने के लिए, और उनको उनकी भी मानसिकता बताने की होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही रिच एरिया रहा है। और लॉट ऑफ पीपल, एक देखो ये मोहम्मद को पगला मोहम्मद कहाँ करते थे जी, लेकिन उतना पगला नहीं था। 19 साल उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी, देवगिरी शिफ्ट करी थी। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो उतना पगला नहीं था। ये जो मैं इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, उसमें से कुछ चीजों को वो भी फैसिनेट हुआ होगा शायद। एब्सोल्यूट। आप देखिए कि मैं जैसे कहा कि ये जैसी गुफाओं की बात आपसे किया हूँ, अरे जीरो कहाँ से पैदा हुआ? बस थोड़ा उससे और एक 30-40 किलोमीटर आगे चला जाओ तो वहां से जीरो पैदा होता है, कन्नड़ से नीचे। तो ऐसी कई चीजें हैं कि जिसका ज्ञान हमको होना चाहिए, और ये लेने की और देने की दोनों मानसिकताएं हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल। दिस मीन्स हम पहले से बहुत समृद्ध थे, हम बिल्कुल भूल थे। गए, और अगर हम अभी वो सब लेके वापस आए, दिस विल गिव अ बेटर पुश फॉर। मैं आपको एक, दिस हैज नथिंग टू डू विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट दिस हैज समथिंग टू डू विथ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ दिस रीजन। वंदे मातरम सभागृह आहे, आपल्याला माहिती आहे ते, येस. पण ते का आलं? त्याचा वंदे मातरम या गीताशी आणि आंदोलनाशी काय संबंध आहे? तर गीताशी काहीही संबंध नाही. ते गीत आधी होतं, आजही आहे. परंतु आंदोलन मात्र ती इथं सुरू झालं आहे आपल्याकडे. अच्छा. की त्यावेळेला कॉलेजमध्ये सगळ्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रार्थनेसाठी जागा होत्यात. मुद्दा होता तेव्हा हिंदुत्व मानणारे किंवा हिंदुत्व मानणाऱ्यापेक्षा मी असं म्हणेन की ज्यांना भारत मातेवरती प्रेम आहे असे, त्यांना आपण जे कोणी असतील त्यात एखाद्या विशिष्ट धर्माचं नाव घेऊ नये, पण ऐसे जे लोग होते, उन लोगों के लिए कोई ऐसी ये व्यवस्था थी नहीं कि वो कहीं जाके बैठे और प्रेयर करें. करेक्ट. तो उन लोगों ने तय किया कि हम वंदे मातरम कहेंगे
और उन लोगों को जगह नहीं मिली तो ओपनली इकट्ठे आके कुछ लोग वो खड़े होके वो वंदे मातरम कहा करते थे, जबकि बाकी लोगों को उनके प्रेयर के लिए जगह मिलती थी, वक्त मिलता था। या गवर्नमेंट कॉलेज के प्रीमाइसेस में जहाँ पर अभी सूबेदारी है, अच्छा। वहाँ वो जो औरंगजेब के ज़माने के महल आज हैं, उसी एरिया में अच्छा। वहाँ पर ये कॉलेज हुआ करता था। तो इट वाज, मैं समझता हूँ कि करीब 1938 की 1938 की बात है कि हैदराबाद में और औरंगाबाद में कुछ लोगों ने ये वंदे मातरम इकट्ठा के कहना शुरू कर दिया वहाँ पर। ओके। जैसे उन्होंने शुरू किया तो दैट वाज टेकन एज समथिंग लाइक एंटी ब्रिटिश, एंटी गवर्नमेंट, और उन सबको रस्टिकेट किया गया। और ऐसे कई लोग हैं, एक भी आप दोनों दाशरथी हो, आपको कहें कि वो जो यहाँ से निकाले गए थे, रस्टिकेट किए थे, उनसे 2-5 दाशरथी भी थे, कन्नड़ तालुके के लोग हुआ करते थे वो लोग। और उन लोगों को निकाल के नागपुर के मॉरिस कॉलेज और जबलपुर के विलिंगडन कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया था। ओके। ब्रिटिशर्स वे आर नॉट दैट अनकाइंड कि उनका एजुकेशन बंद कर दिया, उनको यहाँ से रस्टिकेट करा के बाहर भेज दिया गया उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन शुरुआत वो आंदोलन की यहाँ से हुई थी, और इसलिए आज यहाँ वंदे मातरम सभागृह यहाँ बना हुआ है, कारण ये था। अब कई लोगों को मालूम नहीं कि ये शुरुआत कभी यहाँ से हुई थी। ये जो इंफॉर्मेशन, अब मैं बताऊं आपको कि समुद्र मंथन की बात हम करते हैं, तो समुद्र मंथन सही में हुआ था या नहीं, ये पुराने की बात है। लेकिन अगर वो सही है, अगर वो हुआ था, तो उसका हमारा ये गोदावरी प्रवरा का जो संगम है उससे ताल्लुक है। ओके। वहां पर जब एक ही ऐसी चीज थी समुद्र मंथन जो देव और दानवों ने इकट्ठी करी थी, और जब वो वापस निकले कैलाश की तरफ साउथ से, तो एक दिन के लिए डेरा यहां पड़ा था उनका, 1 या 2 दिन जो भी कुछ होंगे। तो जहां पर प्रवरा और गोदावरी का संगम होता है, वो जो तिकोन है जिसे सिद्धेश्वर कहते हैं, वहां सिद्धेश्वर पे इनका डेरा लगा था। अच्छा। वहां पर अमृत का जो कलश था उसको लेके थोड़े कोई झगड़े हुए, थोड़ी कोई हाथापाई हुई, और उसमें उस अमृत की कुछ बूंदे वहां पर गिर गई, प्रवर कुछ बूंदे वहां गिर गई, इसलिए उस नदी को प्रवरा नदी कहा जाता है। और आपने देखा होगा संगमनेर शहर में जितनी भी सारी संस्थाएं हैं उन सब का नाम अमृत वाहिनी है, क्योंकि प्रवरा नदी को अमृत वाहिनी कहा जाता है, जिसने अमृत का प्रवाह अपने में शामिल कर लिया था। वो जो नदी है वो प्रवरा नदी मानी जाती है। एक वहां की एक कथा हुई। अब दूसरी कथा ये है उसी के साथ जुड़ी हुई, वो ऐसी है कि 2 अलग डेरे लगे थे, दानवों का अलग था और देवों का अलग था। तो राहु नाम का एक दानव ये भेष बदल के ऋषि और देवों की जो खाने के लिए इकट्ठे बैठे थे सारे, वहां उनके साथ उनकी कतार में जाके ये बंदा बैठ गया भेष बदल के। किसी कोने में बैठे हुए दूर ब्रह्मदेव देख लिए उन्होंने, और वो विष्णु को बुलाते कहते हैं कि भाई विष्णु, ये क्या हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, ये कैसा बैठ गया यहाँ पर, मैं तो पहचान लिया। बोले प्रभु मैंने भी पहचाना है। उस वक्त शासन करने का मतलब एक ही था, उसको देहदंड देना था। अब बोले उसको मारे कैसे, आपने तो उसको वर दे रखा है कि कोई स्त्री पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, क्या करें हम। तो ब्रह्मदेव कह रहे थे विष्णु को कि भाई तुम देखो, हमें नहीं मालूम। तो विष्णु ने उस वक्त एक मोहिनी राज का रूप लिया, और उस रूप में जिसमें अर्ध स्त्री है अर्ध पुरुष है, और मोहिनी राज के रूप में उन्होंने राहु का वध किया। इसलिए राहु को शिर नहीं है। जहां भी आप कभी नवग्रह मंदिर देखोगे जी, उसका उल्लेख किया जाता है अर्धकायम महावीर्यम। अब इसके आगे और है, वहां से 5 ही किलोमीटर आगे जाके नेवासा है। आज भी नेवासा में मोहिनी राज का मंदिर है, और उस मंदिर में हर पूजा अर्चा के वक्त हर रोज मंदिर दुरावस्था में है, दुर्भाग्य है, उतना हम दखल नहीं देते, उसकी लेते नहीं है। लेकिन सिर्फ वही लोग जाते जिनका वो कुलदैवत है,
लेकिन नेवासा में आज भी मंदिर है और उस मंदिर में पूजा जब होती है तब उस आधे शरीर में साड़ी पहनाई जाती है और आधी शरीर में धोती। अच्छा। हाँ, और मोहिनीराज का मंदिर वहाँ है। ओके। आगे का दुर्भाग्य अगर आप मैं बताऊं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि जब मैंने वहाँ के पंडित से पूछा कि भाई ये सिद्धेश्वर जी यहाँ लिखा हुआ है, वो सारा इतिहास जो मैं कह रहा हूँ वो लिखा हुआ है वहाँ पर, तो मैंने कहा सिद्धेश्वर कहाँ है? साहब माहित नहीं आम्हाला। ये कहीं और से पता करा कि जो 4 चीजें जोड़नी पड़ी। उसे थोड़ा और आगे जाइए आप, कोपरगांव के नजदीक शुक्राचार्य जी का आश्रम है। उस आश्रम की तो उसका इतिहास बताऊं तो और एक आपको एपिसोड लेना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि वो एक ऐसी जगह इस धरती पर है कि जहां पर धर्म को मानने वाले किसी के लिए कोई शुभ अवसर की जरूरी नहीं है। अच्छा। वहां आप जाइए, अमावस के दिन आप शादी करवाइए, ओके। या कोई तिथि नक्षत्र कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। हाँ। और उनके बेटी की शादी वक्त उन्होंने सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे देवों को वहां बुला के बोला था कि अब इसके बाद ये जगह शुभ मानी जाएगी, और शादी वहां करवाई थी। तो यहाँ से, हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर है। अब ये चीज का ज्ञान हमको होना चाहिए। एक ऐसी है कि आई डोंट नो वेदर इट हेल्प्स यू इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, I don't know whether it helps you in enhancing the trade in this region, but the question comes that there are few things which make you proud of the cultural heritage and the richness of your area. लोग हम मिलते हैं ना, तो हमको कभी कोई नॉर्थ से आते हैं तो हम अगर पूछते अभी कहाँ से आए हो, सर हम मथुरा जी के रहने वाले हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी होगा कि हम ये कहने लगे कि हम संभाजीनगर के, हम छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले हैं। और ये अगर हमारे जहन में आना चाहिए, हमारे मन में आना चाहिए, दिल में और बोलने में आना चाहिए, तो ये जब तक हम इस इतिहास का, इस कल्चरल हेरिटेज का अपने मन में अभिवाद नहीं रखेंगे, तब तक ये चीज़ बनने वाली नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता चले। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इज वेरी इसेंशियल। एंड काका, आई मस्ट से, आपने अभी बोला था एक चंद मिनट पहले कि आई यूज टू टॉक एंड सम थिंग्स पीपल यूज टू लाइक, मुझे कुछ बोलने की ना थोड़ी बहुत डेवलप हो गई थी। आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, और 2 मिनट के लिए हम भूल गए कि हमें अगला भी कुछ पूछना है या नहीं, बिकॉज पूछो यार, पूछिए। वी वर सो एनग्रोस्ड इन द स्टोरीज दैट यू आर टेलिंग। और इसमें द रियल थिंग दैट आई सी, आजू बाजू में दानवों के गुरु, उसके बाद मोहिनीराज, जो स्टोरी सबको पता होती है, बट ये हमारे आजू बाजू में है। दिस इज एसेंशियली द बेस्ट थिंग दैट वी ऑल्सो लर्न टुडे। आई थिंक देयर इज सो मच टू दिस सिटी, देयर इज सो मच हेरिटेज अटैच टू इट, कि शायद कहीं अगर उस टूर पे निकल जाए तो बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। Thank you so much for sharing this, because I am sure many of us really don't know or not aware about these things. It is the same thing, Rohit, actually, कि हमारे पास सब कुछ है. We just need to identify it and keep it in our mind that we have it. Yes. आपण श्रीमंत होतो आणि अजूनही आहोत. आहोत. Absolutely. One more thing, and there are stories I know into which there is a lot of contribution done by you which you never say. But बहुत सारे institutions बड़े बड़े ऐसे हैं, जैसे कि गरवारे स्टेडियम हो गया, एंड्रेस हाउजर कंपनी हो गई, स्कोडा, सिपेट, एंड आई कैन कीप नेमिंग मोर एंड मोर। बट ये यहाँ पे आए, यहाँ पे सेटल हुए। Only thing I know that people of the city were there, they were responsible in everyone's capacities. So if you could share some bit on this. मैंने ये हर वक्त मैं कहता हूँ कि इट्स अ सिटी ऑफ पीपल दोज आर पैशनेट Definitely. फॉर वेरियस थिंग्स। उसको अगर बोली भाषा में बोलना है तो कहते हैं ये पागलों का शहर है। Absolutely. पागल Loved it. किसी चीज से पागल हुए हैं कि नहीं ये करना है मैंने। और इसलिए जैसे अब ये महाराष्ट्र सरकार ने कई बार कहा है कि ये एक ऐसा शहर है कि जहाँ के लोग बाहर की इंडस्ट्री लाने के लिए खुद का वक्त और पैसे खर्चा करके जाते हैं। यहाँ के हमारे इंडस्ट्री के लोग उस वक्त के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चेकोस्लोवाकिया गए थे, जर्मनी गए थे, अपने खर्चे से गए थे। द रीजन वॉज ओनली वन थिंग कि कैसे भी करके स्कोडा हमको यहाँ लाना था। उनसे बात करके
at their own cost they engaged a translator और ले आए. Yes, obviously सरकार का हिस्सा बड़ा था उसमें, लेकिन उनके साथ जाने के लिए, न्योता देने के लिए गांव के लोग पहुंच गए थे. वो हुआ था. आपने अभी 2-3 चीज़ों की बात करी. मैं उससे कहूं कि जैसे गरवारे स्टेडियम की बात है, उस वक्त यहाँ पर भोगे साहब, उसकी कथा लंबी मैं बाद में कहूँ. भोगे साहब हमारे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे. एक दिन ऐसे सुबह हम चाय के लिए पहुँच गए और भोगे साहब हमसे कहते हैं कि यार आज हमको 11 बजे बजट पेश करना है, स्टेडियम के लिए जगह है हमारे पास 29-30 एकड़ कुछ, और पैसे कम पड़ रहे हैं यार, कहीं से पैसे दिलवा दो, तुम इंडस्ट्री वाले कुछ करते नहीं हो. तो मैंने कहा सर देखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ. तो बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 9:30 बजे है, 11 बजे बजट प्रोड्यूस करना है, उसके पहले. तो मैंने कहा इतने कम इसमें कैसे, मैं कितने पैसे चाहिए? तो बोले आप कितने, मुझे 25 के ऊपर कितने भी चाहिए. मैंने कहा ठीक है. अब मैं ऑफिस गया और हमारे साहब को, गरवारे साहब को, शशिकांत गरवारे साहब को फ़ोन लगाया हमने. फॉर्चुनेटली सुबह सुबह वो भी बहुत प्रसन्न मूड में थे. उनको जैसे हमने पूछा तो बोले ठीक है दे दीजिएगा. कितने चाहिए? मैंने कहा सर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए. मुझे लगा कि वो कुछ कम कराने के लिए बोलेंगे, उन्हें पूरे 50 मंजूर कर दिए. और मुझे आज भी याद है कि विद इन हाफ एन आवर देयर फ्रॉम मैंने एक 11 लाख का चेक और एक खत भोगे साहब के घर पे भेज दिया था. स्टेडियम आ गए. बाद में एंड्रेस हाउसर की बात ऐसी है कि एंड्रेस हाउसर वालों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इफ़ यू आर पुटिंग अप अ प्लांट, दे वर माय सप्लायर्स, और उनको हमने बोला था कि इफ़ यू आर पुटिंग अप अ प्लांट एनीवेयर इन, दे सेड कि सर एशियन रीजन में कहीं प्लांट डाल रहे हैं, मे बी इंडिया कुड बी वन ऑफ द डेस्टिनेशंस. तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ आइए देखिएगा. देन दे केम एंड दे वांटेड टू हैव अ डिस्कशन विथ मी. आई सेड नो, you come to our industries association, then we'll talk. They came. और उनकी जितनी सारे प्रॉब्लम्स थे, आई डोंट वांट टू लिस्ट देम, बट देयर आर अबाउट 5-6 ऑफ देम, सम इश्यूज, आई वुड नॉट से प्रॉब्लम. वो आधे घंटे के अंदर एक जगह बैठ के सिर्फ फोन पे हमने सॉर्ट आउट कर दिए. वाह. और इसमें ये कर्तृत्व मेरा या मेरे उस वक्त के कलीस का नहीं था, वो सारे वो अधिकारियों का था कि जिनको हमने फोन किया और दे सेड यस. वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंट ऑफिसर्स इन दिस रीजन, दिस प्लेस, दोज हु contribute even today. You know something very interesting, there is a group of retired IAS, IPS and IRS officers, those who are close to about 80 now. उसका नाम है मराठवाड़ा महफिल. हाँ, So nice. हाँ, it's a very big group of senior officers, those who still feel that they should be doing something for the region. That's and they remember, they cherish those memories. That's great. तो उन लोगों ने कोऑपरेट किया और आज पोजीशन ऐसी है कि in the entire region, this region now, particularly in India, I would put it this way, that now Endres Hauser, the largest family-owned company in Switzerland, has its establishments only in Chhatrapati Sambhajinagar, Aurangabad, Waluj MIDC में, and 5 units which they committed that time. My God. हाँ, they're there. एक छोटी सी बात है कि I was working for a polyester plastic based industry, and CPET, the Central Institute for Plastic Engineering Technology, was in चेन्नई. एंड एक दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई है. हमारे कवड़े साहब जो MIT के चेयरमैन, उनका फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी टाइम्स में न्यूज़ है कि CPET वांट्स टू सेट अप फ्यू सेंटर्स ऑफ इट्स ओन, एंड व्हाई नॉट वी ट्राई फॉर औरंगाबाद. हमने कहा ठीक है. उस वक्त वो मेल वेल नहीं चलते थे, तो उन्होंने मुझे उसकी एक फोटोकॉपी भेज दी टाइम्स ऑफ इंडिया के वो न्यूज़ की. वो हमने अपने जो MP हुआ करते थे, खैरे साहब MP थे वहाँ पर दिल्ली में, तो उनको भेज दी और उनको फ़ोन किया. तो उन्होंने कहा चलो आज ही मीटिंग है, मैं मेंबर भी हूँ एडवाइजरी कमेटी का. उन्होंने मीटिंग में बैठे हुए
रामविलास पासवान जो मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उनसे बात किए और हमको बोले वो मिल सकता है, बोलो क्या करना है अभी। मैंने कहा साहब अपने को लेना चाहिए। वो बोले ये जगह मांग रहे हैं। मैंने कहा जहाँ दे देंगे। फिर 2 दिन बाद मैं खुद इसको थोड़ा आगे प्रोसेस करने के लिए जब दिल्ली गया, तो हमारे एक मित्र किसी और एक बड़े मिनिस्टर के साथ काम करते थे। अच्छा। उन्होंने भी कभी औरंगाबाद में काम किया था। वो कहने लगे यार ये आपको तो नहीं मिलने वाला। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं हम मांग रहे हैं। मैंने कहा हम का मतलब आपके मंत्री जी? तो बोले हाँ हमारे मंत्री जी मांग रहे, तो आपको कैसे मिलेगा, हम तो आपसे बड़े हैं। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं, एक करो, ये जो आपका खत है ना, ये 2 दिन रख लो तो अच्छा रहेगा। बोले वैसे भी नहीं जाएगा, आज फ्राइडे है, हाँ सैटरडे संडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की छुट्टी होती है और ये जाएगा नहीं। हमने कहा ठीक है देखते हैं कैसे करना है। सैटरडे को हम लोग मुंबई पहुंच गए, खैरे साहब आए और उस वक्त विलास राव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उनको रिक्वेस्ट करी कि साहब ये मिल सकता है, नहीं तो दूसरी जगह जाएगा। जैसे वो जगह का नाम सुना तो क्या नहीं ये तो आना चाहिए। क्या चाहिए? जगह चाहिए, चल दे देंगे। उस वक्त मेल्ट्रॉन बंद हुई थी, अच्छा। मेल्ट्रॉन की जगह खाली थी, तो बोले चल दे दिए। एक दिन में उन्होंने खत दे दिया और मंडे के दिन वो रामविलास जी के टेबल पर पहुंच गया, बिफोर द लेटर फ्रॉम द अदर मिनिस्टर दैट इट शुड बी गिवन टू अस। एंड दैट्स अ वेल, आई वुड नॉट claim the entire credit. Obviously there has to be some government working, उसमें उनका feasibility study हुआ होगा। Maybe Aurangabad was one of the places that was fitting into the requirements. But this kind of a push, यहाँ हमें ऐसा रहा कि politicians तो मिले ही, लेकिन अधिकारी गण का सीनियर लेवल पे काम करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका भी जो सहयोग हमें चाहिए वो पहले से मिलता रहा। और इसलिए दे वेंट मेनी ए टाइम्स, दे वेंट आउट ऑफ द वे एंड हेल्प्ड अस, एंड दैट्स हाउ। जैसे मैंने एंड्रेस हाउसर का कहा, सीपेट का कहा, या तो हमारे गरवारे स्टेडियम का कहा, कि दे फ्रैंकली टोल्ड अस कि हमको चाहिए, दे सकते हो का, हम भी ये देंगे। एंड देन इट वाज ऑलवेज अ गिव एंड टेक पॉलिसी, गिव एंड टेक काइंड ऑफ एन अफेयर इन अ वेरी गुड सेंस। ये हम कर पाए। अब और एक बात, हम स्कोडा का हमने कहा आपसे, गरवारे स्टेडियम की बात हुई, सीपेट की हुई, ये और एंड्रेस हाउसर की। एंड्रेस हाउसर को यहाँ लाते वक्त पूरी सरकारी यंत्रणा, वेदर इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, दे हेल्प अस, दे प्रोवाइडेड एवरीथिंग। एंड एक बात तो पक्की है कि यहाँ आने का निर्णय लेने वाले लोग उनके तरीके से इसको जांच पड़ताल तो लेते हैं जरूर, लेकिन सबसे अहम बात जो मुझे एंड्रेस हाउसर वालों ने बताई थी वो ये थी कि वी मूव ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी गो टू लॉट ऑफ प्लेसेस, बट वी नाउ हैव डेवलप्ड अ फीलिंग दैट हियर इन औरंगाबाद वी आर वांटेड एंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड. So if we get that kind of a status in your heart, and then that's what we like, and so they decided to come here. Wow. Absolutely. And I think nothing better can explain again the same statement that you made कि यहाँ के लोग पागल है, because if such decisions could be made within a span of half an hour, one day, which are even bigger decisions, they affect and affect the economy. तो वो अगर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. Thank you so much for sharing that. The people of Aurangabad have a passion for business. They have a zeal to exceed in life. They are very cooperative with one another. They have that warmth which one आता था कि एक ने फोन किया, दूसरे ने उठाया, चलो ठीक है. ऐसे नहीं है की उपकार म्हणून मदत करतील, पण नाही तुला हवा आहे ना तू घे. Yes. चांगलं होतं आहे. So all these things when put together always give a positive kind of feeling, and this positive feeling is very important for the generation like ours and the generation to come, which helps them to come back from abroad after taking education, because I think our city is also known for kids who go outside, study well, and come back to India, settle down in Aurangabad. Because even though we are a small city,
but still we have so many startups, so many entrepreneurs, so many of our friends have gone ahead, gone abroad, taken good education, but still they came back to India. I think these are the positive things of our city which help them to have that in mind कि नहीं मुझे वापस जाना है और मुझे औरंगाबाद में ही सेटल होना है. I think this must be इसके one. बारे में मैं आप लोगों को एक बड़ी, आपको, आपके दिल को छूने वाली बात कहूँ आपके जनरेशन के लिए. यहाँ पर एक IAS अधिकारी हुआ करते थे, तो अभी भी सर्विस में है वो, अच्छे मित्र हैं हमारे, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड. जनरली हमारे संबंध सभी से अच्छे रहे हैं, तो जाते जाते मिलने आ गए यहाँ पर. और उनकी वाइफ वो मुझसे कहती है कि भैया मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ ना, ये करीब 17 साल पहले की है, 17-18 साल पहले की. भैया हमें यहीं की घर के लिए प्लॉट दिला दो. उस वक्त हम गांव के बाहर आए थे, घर बन रहा था या बना हुआ था, तो कह रहे थे कि हमें कोई प्लॉट दिला दो. मैंने कहा यहाँ क्या करना है तुमको, इन्वेस्टमेंट करना है? बोले नहीं, घर बनाना है. मैंने कहा यार देखो, तुम्हारा हस्बैंड तो रिटायर तो वहाँ मुंबई से होगा या दिल्ली से होगा, और तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो. उसके पिताजी सुप्रीम कोर्ट जज हुआ करते थे. तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, बच्चे तुम्हारे नहीं आएंगे, और इस शहर में क्यों रहना चाहते हो, तुम क्या करोगे? तो बोले नहीं, हम इतने जगह घूमे हैं, दिस इज द ओनली सिटी दैट वी हैव सीन जहां पर ऑल द नोन फैमिलीज इन बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, वॉटेवर, उनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हों, वापिस अपने घर पे आए हैं, अपनी बिजनेस में हैं, अपनी घर में रहते हैं, एंड दे आर नॉट नोन फॉर एनीथिंग दैट इज बैड. पूरे सही तरीके से चलने वाले अच्छे लड़के लड़कियां इस गांव में हैं. मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों पे ये संस्कार हो, इसलिए हम यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं. दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने, आपके तरफ बाहर के लोगों को देखने का नजरिया क्या है. आप दोनों बाहर पढ़ के आए हो, इसलिए मैं आपसे कहूँ, एंड यू आर वन ऑफ देम, वो फैमिलीज में से कि जो फैमिलीज के बच्चे बाहर पढ़ के यहाँ आके अपने माँ बाप के साथ एक ही घर में रहते हैं. तो इसलिए ये आपके लिए बड़ी अभिमान, गर्व की बात है. Thank you so much, Dr. Rani. You very aptly now why the city is magnet to not just people of the city, from the city, but from outside the city. ये आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे you explained. One more thing I wanted to ask you that इतना 40-45 साल का लंबा स्पैन, देयर हैव बीन सो मेनी थिंग्स डन, एंड इसमें बहुत सारी चैलेंजेस ऑफ कोर्स आई होंगी. सो इफ यू कुड आल्सो जस्ट साइट सम ऑफ द चैलेंजेस टू अस, इट वुड बी एन आई ओपनर फॉर पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन. क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी थोड़ी सी आज ये होती है कि वी आर पीपल फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन, हम बिजनेस में आए हैं, कहीं कुछ दिखता है तो ऐसा लगता है कई बार कि ये चैलेंज मैं अभी कैसे पार करूं. बट प्रोबेबली वी ऑफन कीप फॉरगेट कि पहले जनरेशन ने तो ये खड़ा किया है सब, और वो कैसे किया है, उनको कैसे चैलेंजेस आ गए हैं, ये पूरा पार्ट कहीं साइड में जाता है. सो आई एम श्योर यू ऑल्सो मस्ट हैव फेस्ड इनफ चैलेंजेस, मेनी ऑफ देम. कैन यू हाईलाइट सम ऑफ देम व्हिच यू थिंक कुड बी शेयर्ड? वेल, मैं इतना ही कहूँगा कि ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस वे देयर. आपको सोशल इश्यूज होते हैं, आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल कई बार करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन सिचुएशन, समथिंग यू नेवर थॉट ऑफ, वो सारी आते हैं. लेकिन the only thing that I would always tell your generation is this, that it is better to face the problem than to avoid it. It is better to have it out. Any problem of any kind. And ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे मित्र हैं, पॉजिटिव वेव्स हैं. इस शहर में किसी के पीछे से कोई की बुराई करता हो, ऐसा जनरली नहीं मिलता है. एयरपोर्ट पे मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, कहीं बात होती है, कहीं सोशल फंक्शन में मिलते हैं, तो अगर किसी से पूछो कि इनसे पहचान है क्या, कैसे है, तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं लोग, बिल्कुल आइएगा. तो इसलिए
यहाँ पर I would say that you have strength within, that you should be willing to face the challenges, and then you have friends, those who are with you, those who are around you to protect you. तो ये होता ही है बिल्कुल पक्का। That's true. मैं तो हर बार ऐसे बोलती हूँ कि औरंगाबाद में नाइट लाइफ हो ना हो, अच्छे दोस्त बहुत है, बहुत है, बहुत है। एंड दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट टू लीड अ Yes, गुड लाइफ. yes, yes, yes. Which I guess further leads to what The next question. we were discussing, or what you wanted to point out about family. Yeah, the next question actually is an important one. How much importance is the role of a family is in one's journey? We as Indians, we are known for the family as an institution, and that is your biggest strength. That is your biggest strength. True. मराठीत सांगतो मी, मूळचा शेतकरी कुटुंबातला, त्याच्यामुळे माझ्याकडचं जे उदाहरण आहे ते उदाहरण असं आहे. आडनावी गवळी, आमच्याकडे गुरं होती बरीचशी गावामध्ये. संध्याकाळी ते सरळ आपल्या गोठ्यात जायचे अच्छा. आणि आपल्या खुंट्यापाशी जाऊन उभे राहायचे. माझ्याकडे कुत्री आहेत, रात्रभर मोकळी असतात. सकाळी वेळ झाली की ते त्यांच्या साखळीच्या शेजारी जाऊन राहतात. ते कुटुंब, ती कुटुंबाची व्याख्या. संध्याकाळ झाल्यानंतर, वेळ झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी स्वतःहून पोचावंसं वाटतं ते घर, ते कुटुंब, बिकॉज यू फील दैट यू आर प्रोटेक्टेड देयर. Right. अनेकदा आप लोगों को सवाल आता है कि somebody whose son is studying in US और who is settled in US, और रहना कहीं हमारे यहाँ फुलंबरी का है या कन्नड़ का है, उस बूढ़े आदमी को वहाँ जाके क्यों रहना है? True. उसको इसलिए रहना है कि वो फैमिली वहीं रही है, वो वहीं बड़ा पला हुआ है और उसको वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहता लगता है. सो एनीथिंग दैट यू डू आउटसाइड, you should always have that feeling कि my family is with me. My family, all the problem that I had. When I was alone, it was my father, mother, brothers, जो भी कुछ है, वो साथ में थे. When I'm married, I have my wife giving me that feeling that we are with you. अब हमारे बेटे हैं, बहू हैं, ये सारे लोग एक फीलिंग देते हैं कि हम हैं ना आपके साथ, don't you worry. So that feeling, and a family in any kind of activity that you're doing, whether it is social work, whether it is business enterprise or anything, family has a major role to play, which gives you absolute backing and a constant feeling that they are with you all the time. That's how family plays a very, very pivotal role in anyone's success. Yes, 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 yes. That's great. Kaka, one more common thing which we have heard from almost everyone is that Raja Bahu, as you are fondly called within the circle. Raja Bahu एक ऐसी कड़ी है जो सबको साथ में जोड़ के रखती है. May it be your friends or family, people from even different political parties or persons which are key as far as administration of the city, administration body overall goes. It is just amazing to see the comfort and friendship they share with you. How do you do that? Well, the comfort and the confidence that they share, ये सवाल तो उनको पूछना चाहिए. I really don't know what is that I can give them. But एक जरूरी है, मैंने भी ये देखा है कि for whatever reason, people tend to confide in me. I have seen that people, those who are junior to me, people, those who are senior to me, in position, even senior to me, they always had this confidence कि इस बंदे से बात करो तो ये कोई अपने को कम से कम सपोर्ट तो करेगा, कम से कम समझ तो लेगा, हो सकता है सुलझाए भी, लेकिन एक फीलिंग दिया जा सकता है. और जो दोस्ताने में ज़रूरी है,
that is giving confidence. Maybe that is something that I have been, I mean, उन लोगों के मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, but I think what I could perhaps give was the kind of confidence. And another thing again, जो पहला सवाल आपका था, family. It is the family because, you know, ultimately, any relationship of any kind is a liability. Is a liability. जैसे है ना, बैलेंस शीट में डिपॉजिट goes on liability side. It doesn't go on assets. Absolutely. So किसी का डिपॉजिट है आपके तरफ, तो इट्स अ लाइबिलिटी. कोई आप पे विश्वास रखता हो, but it's a pleasant liability. Wonderful. Right. And I have lot of pleasant liabilities around me. That's so And I'm good proud to of that. That's just great. And just to follow up on this, how important is it to develop a good network? कि your network is your net worth. Wow. The reason is very simple, that any smallest of a problem, right? कोई बीमार है घर में, तो किसको फोन करें, किससे बात करें, किसके पास जाएं, इसके लिए मन में अगर 2 नाम आने हैं तो 4 तो दोस्त होने चाहिए आपके, बिल्कुल. वो आने के लिए. In an industry, if you have a smallest of a problem, you should know किससे बात करें, किससे पूछे, किससे सलाह लें. You can't be doing everything yourself. And ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हर चीज की, हर दोस्त की, हर व्यक्ति की, हर अधिकारी की अपने को हर रोज जरूरत हो. लेकिन जब आप संबंध तब बनाए रखो जब आपको जरूरत नहीं हो, तो वो भी खुशी से आपको तब मदद करेंगे जब आपको सही में उनकी जरूरत हो. Right. ये जरूरी है. बिल्कुल. Great. So it is an eye-opening session for us. We are also getting educated by this. Absolutely. I think let's lighten the mood a bit. Let's play a rapid fire with you, sir. ठीक है. करायचं का? But there is a surprise to this. We would like to welcome to the podcast the lady luck of the Gowri family, Mrs. Manjusha Gowri. Please. Okay, to start with. So, let's start with Kaka first. So, Kaka, तुमचा नातू अधिराज याचं फेवरेट कोण आहे, आजी की आजोबा? आजी. अरे जी. मला उलट असं वाटतं की त्याचं फेवरेट बदलत राहतं. म्हणजे मोठी मोठी खेळणी आणली की आबा फेवरेट, आणि तो लगेच आबा थँक्यू करून येतो, आणि त्याला भूक लागली की आजी पोपट दे आजी म्हणून favorite. माझ्याकडे येतो. त्यामुळे तो पक्का हे आहे, किंवा आपल्याला दोघेही फेवरेट आहेत. क्या बात है. कसं balance पण याच्यात एक गोष्ट कळाली का, की खेळणी आणण्याचे प्रसंग 15 दिवसात महिन्यात नाही एकदा. कोणी देणे ते जर रोज सकाळ संध्याकाळ. त्याच्यामुळे मी म्हटलं ते खरं. That way, that second what you are saying. काका तुमचा फेवरेट पिक्चर? रचनेनं आवडलेला सिनेमा जो होता तो एक होता सिंहासन, अच्छा. मराठीतला, हो. आणि हिंदीमध्ये अर्धसत्य. Okay. अँड युअर फेवरेट सॉन्ग? We know that you are a very good singer, so we would like to hear 2 lines from you as well. नाही, मला सॉंग जर म्हणाल तर अशी खूप आहेत, पण मला सखी मंद झाल्या तारका हे अरे अधिक वा. आवडतं. क्या बात है. सुंदर. क्या बात. मला ऐकायला आवडेल. नाही, ते नाही गाता येणार, पण तरी मला एक कुझिन जे तुम्हाला खूप आवडतं? मला स्वतःला जेवणात खरं सांगू का, मी अतिशय ट्रॅडिशनल जेवणाच्या बाबतीत. बर. त्याच्यामुळे मला वरण भात भाजीपोळी असंच जेवण आवडतं. त्याच्यामुळे त्यातलं एक काय, किंवा फोडणीचं वरण भात, त्याच्याबरोबर पापड, जमला तर तळलेली मिरची, असं जेवण. क्या बात है. फेवरेट बेत. आणि आता आम्हाला सांगा वन क्वालिटी अबाउट काकू हं. विच यू लव्ह, बेस्ट. एक असं सांगतो की तिच्या माघारी किंवा तिच्या बरोबर एक जर मी म्हणेन की मी घरात सगळ्यात मोठा आहे, त्याच्यामुळे माझ्यापेक्षा जेवढी कोणी धाकटी भावंड आहेत आणि जे आमचे सिनियर्स आहेत आज, या सगळ्यांच्या बरोबरचे संबंध जोडून ठेवण्याचं काम ती एकटीच करते.
वा, आणि तिनं आजपर्यंत ते निष्ठेनं सांभाळलेलं आहे. वा वा. दॅट्स वाय शी इज द लेडी लक. Exactly. ग्रेट. मूविंग ऑन, अब मोर्चा बढ़ाएंगे काकू तुमच्याकडे. सो काकू, तुमची फेवरेट मूवी? मला कायद्याचं बोला हा अरे सिनेमा कुठूनही सुरू करून पाहायला क्या आवडतो. बात है, क्या बात है. सेम विथ मी, मलाही खूप आवडतो. आणि फेवरेट लोकल डिश, म्हणजे इफ आय हॅव टू गिव्ह ऑप्शन्स, पालवाईचा पेढा, उत्तमची इंग्रती, गायत्रीची कचोरी किंवा आणखी काही? खरं म्हणजे मी खूप अशी चोखंदळ खाणारी नाही आहे. मला सगळं जे समोर येईल त्या वेळेला ते आवडत राहतं. ओके पण प्रॉपर औरंगाबाद मधलं म्हणाल तर कचोरी आवडते. ओके, दॅट्स ग्रेट. म्हणजे तुम्ही तिखट तिखटाकडे जाणारा, हो, स्वभाव आणि खाणं दोन्ही पण तिखटकडे जाणारच आहे. माझा पाठिंबा आहे तिखट खाण्याला की स्वभावाला? दोन्ही. ओव्हरऑल स्टेटमेंट. बेस्ट क्वालिटी ऑफ काका दॅट यू लाईक? फॅमिली मॅन, म्हणजे आपण ज्याला परिवार म्हणतो, तर फॅमिली म्हणजे इन एव्हरी सेन्स, की मित्र परिवार, आप्त परिवार, परिवार, ह्या गोष्टींना अतिशय महत्त्व देणं आणि प्रत्येक चांगल्या वाईट प्रसंगात उभं राहणं फॅमिलीच्या बाजूला, ही त्यांच्यातली क्वालिटी. म्हणजे आमच्या दूरपर्यंत असणारे जे संबंधित आहेत त्या सगळ्यांना काही ना काही निमित्ताने हा अनुभव आलेला असतो की अमुक एक अडचणीच्या वेळेला आपण फक्त राजाभाऊंना फोन करायला हवा. आणि मग तो कुठेही असू शकतो, म्हणजे तो अगदी काही अवतीभवतीच असला पाहिजे असं नाही. तो परदेशात असला तरी पण त्याला हा कॉन्फिडन्स असतो की इथे बसून मी जर राजाभाऊला फोन केला तर तो काहीतरी मार्ग शोधेल. आणि हे जे फॅमिली करता त्यांच्या डोक्यात असतं कायम, ते मला खूप मनापासून भावतं. ॲब्सोल्युटली, देर कॅन नेवर बी टू ओपिनियन्स अबाउट दॅट. आणि तुमचं फेवरेट गाणं? खरं म्हणजे अशी फेवरेट गुणगुणत राहणं हे कायम असतं, पण फेवरेट असं म्हणता येईल असं काही नाही. ह्यांचं एक गाणं मला अतिशय आवडतं, म्हणजे हे जे गातात तर ते म्हणजे मराठी भावगीत आपलं स्वर आले. नाही, स्वर आले दुरुनीपेक्षाही, हो, स्वर आले दुरुनीच आधी. अरे आणि वा. त्या गाण्याची कथा हे सांगतात. यांना म्हणजे जे हे गाणं ज्यांचं आहे त्यांनी स्वतः यांना ही कथा सांगितली आहे. तर ते गाणं गाण्यापेक्षा यांना ती कथा सांगायला खूप आवडते आणि मग नंतर ते गाण्याच्या 2 ओळी गायलेल्या छान वाटतात. वा. तर ते मला खूप आवडतं. आम्हाला पण ऐकायला आवडेल ती कथा. वेल, मी सांगतो तुम्हाला काय झालं. काही वर्षांपूर्वी एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं यशवंत देव इथं आले होते आणि ते आपल्याकडे घरी मुक्कामी होते. ते आले पहाटेच्या देवगिरीनी, किंवा तरी 4 वाजता आले आणि त्यानंतर जे रियाज गाणं जे बसले ते दुपारच्या जेवणापर्यंत. वय बरंच झालं होतं पण काय कुठे आराम बिराम केला नाही. त्यांनी त्यांच्या एका गाण्याची कथा सांगितली. त्या गाण्याची कथा अशी होती की ते म्हणाले, नागपूर आकाशवाणीला ते काम करताना एक दिवस ते एक निळं आंतरदेशीय पत्र यायचं, निळं इनलँड, त्या पत्रावरती त्यांना जोगांनी नोटेशन्स पाठवले. अच्छा. फक्त नोटेशन्स पाठवले आणि त्या नोटेशन्स आणि खाली एकच लिहिलं की यशवंतराव याच्यावरती गाणं लिहून पाठवा, चाल मी देईन. वा. नोटेशन्स पाठवले, याच्यावर गाणं लिहून पाठवा, चाल मी देईन. हे म्हणाले फारच अवघड होतं, पण म्हणाले मी घेऊन बसलो एक दिवस आणि मग मला सुचलं. कारण काय आहे, ते दुरून आले होते स्वर लिहून, तर मग त्यांनी गाणं लिहिलं. स्वर आले दुरुनी जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी, स्वर आले दुरुनी. हे सगळं यशवंत देवांच्याकडनं मी इथे बसून घरी ऐकलेलं आहे. क्या बात आहे. काका, टाळ्या याच्यासाठी. आणि काकू, फायनली वी ट्रॅप्ड काका. नाव इट इज युअर टाइम. यू ऑल्सो हॅव टू सिंग 2 lines बिकॉज वी नो यू आर ऑल्सो लवली लवली सिंगर. मी माझ्या लग्नाच्या आधी यांच्या वडिलांच्या आग्रहाखातर एक गाणं म्हटलं होतं की गो गाते असं कळल्यानंतर माझ्या सासऱ्यांनी मला म्हटलं होतं की गाणं म्हणून दाखव. ओके. आणि तेव्हा मी जे गायले ते मला कायम असं स्मरणात. जवळचं गाणं आहे. तर ते असं होतं, 2च ओळी गाणार आहे. जा रे बदरा बेरी जा,
रे जा रे पिया का संदेशवा, ला रे जा रे बदरा बैरी जा जा रे बदरा बैरी जा. वाह. क्या बात है. That's great. Thank you so much. असं आपल्याला जमलं पाहिजे. 40 years. Not so easy. We are just हे under जे an युग आहे 40 नाही 14 मध्ये करायचं असं ठरवलं. That's new target for us. But thank you so much, Kaka and Kaku. It was an exhilarating ride today. Amazing that we could come here and get an opportunity to interact with both of you. We learned so many things. So as our viewers, on behalf of all of them, I thank both of you. So ladies and gentlemen, that was Dr. Ullas Gowri along with his Better Than the Best. माध्यमातून एक गोष्ट पुढे मांडायची होती की हे पॉडकास्ट जे आपण तयार करतो आहोत, इट्स अन तेजस इज अन इनिशिएटिव्ह Yes. बाय NSBT. Again, it is promoted by a family in this town, which has been one of the leading families in the field of industry and trade. राईट. महत्त्वाचा त्यातला एक भाग असा आहे की NSBTचे चेअरमन स्वतः सिनियर कागलीवालजी नंदकिशोरजी, ही रिप्रेझेंट्स द जनरेशन की ज्या वेळेला इथून बाहेर जाऊन इथल्या व्यापारी किंवा जे अफोर्ड करू शकतात अशा कुटुंबातली मुलं बाहेरून शिकून आलीत. आता सगळेच जात आहेत, पण तो काळ असा होता की ज्या वेळेला बाहेरून शिकून येणारे लोक फारसे नव्हते, त्यावेळेला बाहेर जाऊन शिकून आलेत आणि त्याचा उपयोग करून स्थानिक उद्योग उभे केलेत. आपलं वैशिष्ट्य काय आहे आज आपल्याकडे? सुरुवातीच्या काळामध्ये वी वेर डिपेंडंट ऑन लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड अँड पुटिंग अप देअर इंडस्ट्रीज. बट नाव दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फिअर अँड गेव अस अ फिलिंग की बा या भागामध्ये एंटरप्रिन्युअरशिप आधीपासून होती. मी मगाशी तुमच्याशी बोललो तसं. पण आता एक चित्र असं दिसतंय मला की अनेक कुटुंबातना मुलांना शिकून व्यवसाय करायचा आहे. न शिकता व्यवसाय करता येत नाही असं काही मी म्हणणार नाही, निश्चितपणे करतात. परंतु त्याला फिनिशिंग देण्यासाठी आणि तो अधिक परिणामकारक करण्यासाठी, व्हॅल्यू ॲडिशनची प्रोसेस अधिक सुरळीत करण्यासाठी, अधिक सुकर करण्यासाठी या शिक्षणाचा फायदा होतो. आणि त्या निमित्तानं NSBT स्वतः मॅनेजमेंटचे कोर्सेस करतेच आहे. परंतु फॅमिली ओन बिझनेससाठी म्हणून काहीतरी वेगळे कोर्सेस डिझाईन करता आले आणि ते आपण या ठिकाणी घेऊ शकलो, Wonderful. तर मला असं वाटतं की NSBTनं तो विचार करावा. मी निश्चित मांडेन. मी पण एक सदस्य आहे संचालक मंडळामध्ये, पण मी तुमच्याही माध्यमातून NSBT व्यवस्थापनापुढे हे एक मांडू इच्छितो की आपण फॅमिली ओन बिझनेससाठी आपण बाहेर मुलं पाठवण्यापेक्षा, आपण लंडनला मुलांना पाठवायचं किंवा मुंबईला पाठवणं यापेक्षा या मुलांसाठी इथे वेगळे कोर्सेस आपण डिझाईन करता येईल का, Absolutely. त्यांच्या गरजा जाणून घेता येतील का, त्यांच्या वेळांप्रमाणे नियोजन करता येईल का, असं जर करता आलं तर अवश्य करावं अशी इच्छा आहे. Wonderful. I think this is a wonderful thought. So that was Dr. Ullas Gowri with us, with whom we had a wonderful ride of the entrepreneurial as well as historic heritage of Chhatrapati Sambhajinagar, that is Aurangabad. It was an inaugural podcast of the Tejas series and NSBT initiative. Finally, thank you NSBT for making us a part of this amazing series. Next time, we, Radhika and Rohit, will meet you again with another fantastic guest on the show. Till then, signing off. Namaste.